Hello everyone, this is Hayat Arzadi, a cybersecurity expert. In this video lecture, we are going to learn about email spoofing. Number of learners asked me a lot about it, like what is spoofing? How can we do it ourselves? How to identify it and protect us from spoofing attacks. So let's understand. Email spoofing is a practice used in scams and phishing attacks to deceive people into believing the message come from a known or trusted source. Why attackers use spoofing? For fake email from a friend with a malicious link, fake email from CEO demanding credential company data, fake email from seller for asking bank details, spoofed email to employees allegedly from CEO or CFO asking for an emergency money transfer, spoofed email to employees allegedly ask for trusted vendors to gain credential information, spoofed email to employees to gain access to legitimate email threats about payment and billing information, spoofed email from friends containing infected link, and these are the things why they are going to use email spoofing. How they do it? The email header is changed so that the message appears to have come from a friend or a legitimate company. जैसे आपको पता है जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल का जो हेडर है वहाँ पर वो ईमेल कहाँ से आया है, किस नाम से आया है, सारी इंफॉर्मेशंस मेंशन्ड रहती हैं. अगर उसको टेम्पर कर दिया जाए, उसको मॉडिफाई कर दिया जाए या उसको चेंज कर दिया जाए तो यू विल बी बिलीविंग कि ये मेल कहीं और से आया है, राइट? सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पूफिंग अटैक्स? So let's understand do's. Turn on your spam filter. Check for poor grammar. Hover over the URL before clicking. Hover means जब आप कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हो, that is hover. Confirm information with the source. Set up two-factor authentication. Download cybersecurity softwares like antivirus and all. So what are the don'ts? Click on unfamiliar downloads. Never do that. Do not answer unrecognized calls, mails or messages. Right? Just like we have Truecaller for that, जो आपको spam और normal calls के बीच में filter out कर देता है. Give out your personal information to unfamiliar sources. Right? This is one of the major reason. Right? हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ एक ऑफ़र या कुछ स्कीम दिखती है, जस्ट वी क्लिक ऑन दैट और हम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. या जब हम किसी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ फिलिंग दोज इन्फॉर्मेशन मैनुअली हम कंटिन्यू विथ मेल आईडी कर देते हैं, राइट? सो नेवर डू दैट थिंग. यूज़ द सेम पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल लॉगिन्स. हर जगह सेम पासवर्ड यूज़ करना इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस. नेवर डू दैट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको नहीं करनी है कभी भी. एक क्वेश्चन जो हम सब के माइंड में आता है कि अगर हमको कोडिंग की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या हम ये सब कर सकते हैं? सो द आंसर इज बिग येस. हियर वी आर गोइंग टू यूज ChatGPT to develop our codes and GoDaddy server for the hosting of those codes. This is not a sponsored video by ChatGPT or GoDaddy. So you can use any other server for the hosting purpose which allow you the mail hosting or email sending facility, right? So just move to ChatGPT. बहुत आसान सा इंटरफेस है. आपको सिंपली या तो साइन अप करना है या लॉग इन करना है. तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ. यू कैन, अगर आप पहली बार आए हो तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो, राइट? तो मैंने मेरे ChatGPT अकाउंट पे लॉग इन कर लिया है.
आप भी जब लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, राइट। तो अब चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉम्प्ट्स, राइट। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड्स हम हमारे चैट जीपीटी को देते हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से कमांड्स या प्रॉम्प्ट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं। जो कमांड्स हैं, अगर आप इसको दे रहे हो और आपको डिज़ायर्ड कोड ना मिले तो मैं जो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा मैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पिंग कर दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम बेसिकली इसको दो प्रॉम्प्ट्स देंगे। पहला है गिव मी PHP कोड दैट अलाउ मी टू सेंड ईमेल, ठीक है। तो आपको भी सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, गिव मी PHP कोड that allows me to send emails। तो ये हमें एक कोड डेवलप करके दे देगा। तो ये हमारा कोड है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको बता देगा। कोड बहुत आसान है। यहाँ पर आपको सेंडर्स मेल रिसीवर्स मेल देनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, यहाँ पर मैसेज देना है और ये हेडर्स में एग्जीक्यूट करके सेंड कर देगा। अब देखने वाली चीज़ जो है, अगर मेल सेंड हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगा और नहीं होगा तो फेल टू सेंड ईमेल, प्लीज़ चेक योर सर्वर कनेक्शन। अब जो यहाँ समझने वाली चीज़ वो ये है कि यहाँ से आप मेल सेंड तो कर सकते हो लेकिन स्पूफ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सेंडर्स का ऑप्शन नहीं है, सेंडर ईमेल का ऑप्शन नहीं है। तो अब हम वापस से एक और प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड प्रॉम्प्ट है वो है कैन यू मॉडिफाई द कोड अबव टू अलाउ मी टू सेट सेंडर ईमेल एंड नेम। सो अब मैं ये सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, कैन यू मॉडिफाई the code above to allow me to set senders mail, email and name। सो दिस इज द कोड दैट वी वांट। हमने पहले एग्जीक्यूट किया, हमें वहाँ पर कोड मिला, अब हम उस कोड को मॉडिफाई करवा रहे हैं, राइट। हमने मॉडिफाई करवा के यहाँ पर हमें 2 का ऑप्शन मिल रहा है। हमें यहाँ सेंडर ईमेल, सेंडर नेम, सब्जेक्ट, मैसेज का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारे एडिशनल हेडर्स हैं जो कि हमारे इस मेल को एग्जीक्यूट करवाएंगे, सेंड करवाएंगे, यहाँ पर है। इसके बाद फिर हम सेंड द ईमेल, यहाँ से ईमेल सक्सेस हमने फंक्शन रन करवाया है और यहाँ पर हमारा मेल फंक्शन रन हुआ है और यहाँ पर हमें चेक कर रहे हैं रिजल्ट। अगर हमारा मेल सक्सेसफुली सेंड हो गया है तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और नहीं हुआ है तो फेल्ड टू सेंड द ईमेल। तो इस तरह से आपको बिना किसी ज़्यादा कोडिंग नॉलेज के आपको अपना कोड चैट जीपीटी से बनवा लेना है। इसके बाद इसको कॉपी कर लेना है और इस कोड को कॉपी करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि आप जाओगे अपने किसी भी होस्टिंग सर्वर पे, आपको वो होस्टिंग सर्वर चूज़ करना है जो आपको मेल सेंडिंग फंक्शनैलिटी अलाउ करता है। तो ये मेरा GoDaddy का पैनल है, GoDaddy होस्टिंग सर्विस है जो मैं यूज़ करता हूँ मेरी वेबसाइट के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ GPT मेल, ठीक है। मैंने यहाँ पर GPT मेल के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, राइट, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको ओपन करने के बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.php, ठीक है, क्योंकि हमारा PHP कोड है तो हमें PHP फाइल चाहिए और जब आप इसको क्रिएट करने के बाद रिफ्रेश करोगे यू विल गेट द फाइल। सो हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इस फाइल को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आप अपनी फाइल पे सिंपली राइट क्लिक करोगे और एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन एडिट इट। अब हमें यहाँ पर हमारा कोड पेस्ट कर देना है जो हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था। और कॉपी करने के बाद, पेस्ट करने के बाद हमें इस कोड में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि हम किसी को भी इस मेल आईडी से मेल सेंड कर पाएँ। सो उसके लिए वीडियोस बहुत ध्यान से देखना और जो मैं स्टेप परफॉर्म करूँगा उसको बहुत ध्यान से समझना। कुछ समझ नहीं आता है तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो सबसे पहले जो 2 का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें रिसीवर्स मेल आईडी एंटर करनी है। तो मेरे केस में जो मेरे रिसीवर की मेल आईडी है वो मैं मेरी ही एंटर करता हूँ। मेरा दूसरा अकाउंट जो मेन अकाउंट है director.dict@gmail.com, तो ये मेरी मेन मेल आईडी है। अब मैं जो यहाँ पर सेंडर्स मेल है, यहाँ पर जिस मेल आईडी से मैं इस पर मेल भेजना चाहता हूँ मैं वो एंटर करूँगा। तो मेरे केस में मैं मेरा ही दूसरा मेल एंटर कर देता हूँ, hayatrzaidi8@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मेरा नाम एंटर कर देता हूँ, हयात आर जैदी। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में हमें जिस मेल का जो टाइटल होता है ना वो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे ईमेल स्पूफिंग टेस्ट। अब यहाँ पर मैसेज में जो भी आप अपना मैसेज लिखते हो वो लिख सकते हो, टेस्टिंग डन। ठीक है, तो ये हमने हमारा मैसेज लिख दिया और अब आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको इस पेज का URL हिट करवाना है। जैसे ही आप इसका URL हिट करोगे ये मेल डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी होस्टिंग के थ्रू जा रहा है। सो देयर माइट बी सम डिले बट मेल सेंड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आती हैं कि कभी कभी ये मेल आपका स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें मेल रिसीव हो जाएगा। तो हमने इसको कट किया और अब ध्यान से देखो, जैसे मेरा जो डोमेन है वो है theict.in। अब इस डोमेन के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था GPT मेल, तो मैं लोकेशन कैसे दूंगा, theict.in /GPT मेल, राइट। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, लोड होगा, लोडिंग स्लो भी हो जाती है क्योंकि आप अपना होस्टिंग का मेल सर्वर यूज़ कर रहे हो। और यहाँ लिख के आ गया ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब हमारा जो मेल है वो यहाँ से सेंड हो चुका है। अब हम जल्दी से हमारे मेल बॉक्स में पहुँचते हैं और वहाँ से हम देखेंगे कि क्या हमारे मेल जो हमारा मेल जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हमें मेल रिसीव हुआ है या नहीं। तो जल्दी से चलते हैं हमारे मेल बॉक्स में और वहाँ पर देखते हैं कि हमें मेल रिसीव हुआ है, और हुआ है तो किस तरह से रिसीव हुआ है। सो दिस इज़ माई मेल बॉक्स, और जैसा अभी आपके सामने एक मेल यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है जो आप देख पा रहे हो, राइट। हयात आर जैदी ईमेल स्पूफिंग टेस्ट टेस्टिंग डन, और ये नेम है और ये आपको मेरा फ़ोटो दिख रहा है जो मेरी मेल आईडी से आया है। अब आप बोल सकते हो कि ये मेरा ही पैनल है, राइट, मैंने ही अभी आपको दिखाया है। हो सकता है मैंने मेरे अकाउंट से यहाँ पर मेल सेंड कर दिया हो, मेरे ओरिजिनल आईडी से यहाँ सेंड कर दिया हो। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आप सेम कोड यूज़ करके जब टेस्ट करोगे यू विल गेट टू नो कि ये काम कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक सर्वर का लिंक मिल जाएगा जो कि नॉर्मल मेल में नहीं आता। सो दिस इज़ हाउ मेल स्पूफिंग वर्क्स, और हमने सक्सेसफुली हमारा मेल रिसीव कर लिया है, एक मेल सर्वर जो हमने अभी डेवलप किया है। दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर ओन मेल स्पूफिंग सर्वर without having a knowledge of PHP and how to develop these codes. Thank you so much for being in the session.